یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک بار پھر جنوبی لبنان میں اور حزب اللہ کے ٹھکانوں کو شدت کے ساتھ نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل اور مغربی پروپیگنڈا بہت حد تک آگے بڑھ گیا، دشمن کے موقف کو تسلیم نہیں کرنا ہوگا۔ قریب پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی گئی ہے۔ السلام علیکم، توارے پاکستان میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ میرا نام ہے صوفیہ صدیقی اور ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں وہ اہم ڈیولپمنٹ جو اس وقت خطے میں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر اگر مڈل ایسٹ کے کرائسس کی بات کی جائے تو آج کل ہم اس کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کو یہ امید تھی کہ مذاکرات ایک مثبت سمت کی جانب گامزن ہوں گے، اور ہمیں جب کل یہ خبر آئی تھی کہ دستخط کر دیے گئے ہیں دونوں ڈاکومنٹس کے اوپر، ایران کی جانب سے اور امریکہ کی جانب سے، اور پاکستان نے اپنی ثالثی میں اس ڈاکومنٹ کے اوپر سائن بھی کیا، یعنی کہ پہلے ایران نے اور امریکہ نے دستخط کیے، اس کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دستخط کیے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں جو اہم مذاکرات ہو رہے تھے ان کو کینسل کر دیا گیا ہے اور ان کی معطلی کی کوئی وجہ سامنے نہیں آئی ہے۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ انفارمیشن ہے جو آپ بھی سمجھنا چاہتے ہوں گے، تو یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ یہ ساری ڈیولپمنٹ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں یہ انڈیکیٹ کر لیا تھا کہ نیتن یاہو کے اوپر شدید تنقید کی جا رہی ہے، لبنان کے اوپر مزید اگر حملے کیے گئے تو وہ کسی بھی قسم کی خطرناک سچویشن میں پورے خطے کو اور پوری دنیا کو ڈال سکتے ہیں۔ تاہم ابھی تک جنگ بندی کا جو سلسلہ ہے اس کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے۔ ایسا بھی نہیں بتایا گیا کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ سے اس کی ناکہ بندی کی جائے گی۔ گزشتہ رات ہمارے پاس یہ انفارمیشن بھی سینڈ کام کی جانب سے آ گئی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خطے کی جو ناکہ بندی ہے، پرٹیکولرلی آبنائے ہرمز کی جو کی گئی تھی، اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سچویشن بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آئے گی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کی فوج نے لبنان کے جنوبی علاقے میں جو بفر زون ہے اس سے نہیں نکلے گی۔ یہ بہت اہم انفارمیشن ہے، یعنی کہ وہ ایک دفعہ پھر سے یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ گزشتہ روز ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہے، ان کے اوپر دباؤ ہے اس بات کا کہ وہ اس معاہدے کا جو کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہا ہے اس کا حصہ نہ بنے اور اس کی امپلیفیکیشنز کے اوپر نہ جائیں۔ ساتھ ہی ان کو بہت سی وارننگ کے ساتھ ساتھ اس دفعہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ تو الیکشن نہیں جیت پائیں گے، یعنی کہ یہ نیتن یاہو کی آخری ٹرم ہے، اس کے بعد ان کو الیکشن نہیں ملے گا۔ یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا کہ آیا دوبارہ لوگ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن سو کالڈ اسٹیٹ اسرائیل کی جانب سے اس طرح کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی ہی تشویشناک ہیں، جس نے پوری دنیا کو ایک دفعہ پھر سے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسا بیان اور بیانیہ بھی چل رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو صرف تیل کی قیمتوں کو بڑھانے چڑھانے کی ایک گیم چل رہی ہے، جس میں دو پارٹیز فریق ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہوگا آگے چل کے، اور اٹ جسٹ لائک اے گیمبل جو کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بار بار کھیلا جا رہا ہے۔ ادھر حزب اللہ کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ تمام تر طاقت کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے اس علاقے پر حملہ کرنے کا کہہ دیا ہے۔ انہوں نے 52 آرمڈ بٹالین کے کمانڈرز اور ملکی افواج کے 3 سپاہیوں کی ہلاکتوں کے رد عمل میں اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک بار پھر جنوبی لبنان میں اور حزب اللہ کے ٹھکانوں کو شدت کے ساتھ نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلی رات اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے تمام تر طاقت کے ساتھ حزب اللہ کے اوپر حملہ کرے۔ نیتن یاہو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل نے 80 سے زائد ٹھکانوں پر حملہ کیا اور تنظیم کے درجنوں لوگوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ اسرائیل اپنی فوجیوں کو اس سرزمین سے جہاں تک وہ لبنان کا علاقہ لے چکے ہیں وہاں سے وہ پیچھے ہٹانے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، اور یہ سب چیزیں آپ کو بتا رہی ہیں کہ کس طریقے سے جو خطے کی تبدیلیاں ہیں وہ تیزی سے
ग्रेटर इसराइल की तरफ जा रही हैं। सिर्फ यही नहीं है, अगर हम बात करें कि दुनिया भर में इस वक्त किस किस्म की मैसेजिंग हो रही है, दुनिया भर में जो सेटन्स हैं वो किस तरह की इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, तो आपको वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि इज़राइल और मगरिबी प्रोपेगेंडा बहुत हद तक आगे बढ़ गया। फीफा वर्ल्ड कप की तकरीब तो आपने देखी ही होगी। फीफा वर्ल्ड कप कि जिस वक्त इनॉग्रल सेरेमनी हो रही थी, हमने बार बार उसमें देखा कि उसमें तिकोन के साइन बनाए गए, उसमें ऐसे बुतों को प्रेजेंट किया गया जो कि मैसेजिंग कर रहे थे, उसमें ऐसी सीढ़ियाँ बनाई गई थी जो इस बात का दलाइल दे रही थी कि दज्जाल के आमद की तैयारियां की जा रही हैं और पैगाम दिए जा रहे हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता महीने जो हुआ वो यकीनन आपको याद होगा, इज़राइल में एक बड़े डेड सी के करीब एक बड़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया था, जिस फेस्टिवल का बुनियादी मकसद ये था कि शैतान साहब को खुश किया जाए और एक दफ़ा फिर से दावत दी जाए उनके मसीहा को कि वो जल्द अज जल्द आएँ, ताकि उनकी एक दफ़ा फिर से हुक्मरानी का दौर का आगाज़ हो खित्ते में। मुज़ाकरात के हवाले से हम आपको पहले ही बता चुके हैं। एक और अहम डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान के हवाले से सामने आ रही है। मिस्री वज़ारत ख़ारजा ने इस बात का ऐलान किया है कि मुल्क के वज़ीर ख़ारजा बदल अब्दुल अती इतवार के रोज़ पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के हम मनसब की मेज़बानी कर रहे हैं। ये बहुत अहम मुलाकात है। अब्दुल अब्दी ने इस बात के ऊपर भी बयान दिया है कि इसमें वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा समेत दीगर ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। बयान में बातचीत के मौजू का ज़िक्र नहीं किया गया है, ताहम ये ज़रूर बताया गया है कि चारों ममालिक मशरिक़ वुस्ता की जो जंग की सूरत हाल है उसमें सालसी की कोशिशों में अहम किरदार अदा करने वाले ममालिक में से थे, और ये आप अगले सिलसिले को देखेंगे। ये मुलाकात कहाँ हो रही है, अगला सवाल ये है। तो तुर्की का शहर है अंतालिया, जहाँ पे ये मुलाकात मुनक्किद होगी। मुलाकात के बाद हमारे पास दीगर इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। उधर स्विस की जो वज़ारत ख़ारजा है उसके मुताबिक कल की मुलाकात स्विट्ज़रलैंड और ईरान के दरमियान जो है वो मुलतवी हो चुकी है। आप जानते हैं ये मुलाकातें क्यों मुलतवी हो रही हैं? सिर्फ़ इस वजह से कि इज़राइल ने एक दफ़ा फिर लबनान के ऊपर बड़ा हमला किया है और उनके अहम ओहदेदारों को निशाना बनाने का दावा कर रही है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने आज कौमी असम्बली में इजलास से ख़िताब किया है, और जिस वक्त वो कौमी असम्बली के इजलास में आए उनकी बड़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया गया। बजट का सेशन है जो इस वक्त कौमी असम्बली में जारी है। वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी में ये अप्रूव नहीं होगा, ताहम अभी बजट का सेशन अगले 1-2 दिनों तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुश आइंद खबर का इजहार करते हुए ये ज़िक्र किया है कि पाकिस्तान की कोशिशों में ये मुलाकातें बेहतर अंदाज में चल रही हैं और ये इसी तरह से जारी रहेंगी। ईरान के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है उन्होंने, और वो जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ऐसी इंफॉर्मेशन भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आवाम के साथ शेयर की है। शहबाज शरीफ के मुताबिक इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है, जिस पर ईरान पाकिस्तान का शुक्रगुजार है, और उन्होंने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुन्नीर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और पूरी पाकिस्तानी कौम का उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया है। और उन्होंने कहा है कि दुनिया के लिए ये एक बहुत अहम और ज़रूरी पैगाम है कि ईरान और पाकिस्तान सिर्फ हमसाया ममालिक नहीं है, बल्कि वो ब्रदर्स हैं जिनके दिल एक साथ धड़कते हैं, और पाकिस्तान ईरान के मुस्तकबिल के में मज़ीद कुर्बत और ताउन के साथ आगे बढ़ता हुआ आगे की सिमत में गामज़न रहेगा। अब थोड़ी सी डिटेल के साथ हम डिस्कस करते हैं कि अमरीकी हथियारों और अमेरिका में आखिर क्या हो रहा था। अमरीकी हथियारों ने इसराइल को बचाया है, जेडी वैंस ऐसा कह रहे हैं, और इनके ऊपर तनकीद भी की जा रही है। उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप भी नेतन्याहू के ऊपर गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। वहीं गुज़िश्ता रोज़ की ये इतलात भी हमारे पास मौजूद है कि नेतन्याहू ही हिमसेल्फ कर्सिंग हिमसेल्फ एन अमेरिका, कि वो अमेरिका के साथ क्यों खड़े हुए हैं। ईरान के मामले पे जो मुज़ाकरात है उसकी ब्रीफिंग चल रही है, बहुत सारी बातें हैं जो हो रही हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़रूरी सिचुएशन है वो ये है कि
क्या वाकई इजराइल इन तमाम मुआहदों को, इन तमाम बातों को और ईरान को अमेरिका के साथ टेबल पे आने देगा? अमेरिका इस वक्त जो शदीद तनकीद का जिस बात पे सामना कर रहा है वो $300 करोड़ हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट अमेरिका करने जा रहा है। और आज हमने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी जिसमें सदर डोनाल्ड ट्रंप डिफेंड करते हुए नज़र आए हैं अपने इस फैसले को, और साथ उन्होंने कहा है कि मैं बेहतर जानता हूँ कि मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है। इसराइल इज़ नोबडी टू टेल देम कि उन्हें किस सिमत में जाना है। अब थोड़ी सी बात करते हैं ईरान के हवाले से। ईरान के कौमी असम्बली के स्पीकर बाकिर कालीबाफ वो ये कह रहे हैं कि मुआहदा शिकनी की सूरत में ईरान तबाहकुन जवाब देने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। ये बयान उन्होंने ख़ास तौर पर लबनान के हवाले से दिया है कि अगर लबनान के ऊपर हमला इसी तरह जारी रहता है तो ईरान बिल्कुल भी नहीं कतराएगा जवाबी कार्रवाई करने से। कालीबाफ की जानिब से सोशल मीडिया बयान पे ये कहा गया है कि रहबर आला ने उन्हें इस बात की ज़िम्मेदारी सौंपी है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि मुआहदे की शराइत और दफ़ात पर अमल दरामद हो। कालीबाफ का ये कहना है कि दूसरी जानिब यानी कि अमेरिका की जानिब से अगर मुआहदा शिकनी की गई, हद से ज़्यादा मुज़ाकरात के मामलात को सामने रखा गया और जो ईरान की तबाहकुन किस्म का जवाब देने की सलाहियत है ईरान उससे बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। ये बहुत अहम बात है। जब अमेरिका बार बार इस तरह के बयान देता है ना तो मुझे लगता है कि ईरान को मजबूरन इस किस्म की स्टांस देनी पड़ते हैं जिसकी वजह से हमारे सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन आती है। अमेरिका 6 माह में यूरोप में अपनी फ़ौज की मौजूदगी के मुतालिक जायज़ा लेगा, ऐसा कहना है पैट हेक्सेट का। उन्होंने कहा है कि नेटो की जो इत्तेहादी फ़ौजी हैं उनके ऊपर जो सख्त तनकीद है वो पहले ही अमेरिका की जानिब से की जा रही थी। अब उन्होंने ये कहा है कि 6 महीने के अंदर वो जायज़ा लेंगे कि यूरोप में उन्हें अपनी नेटो के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें बहाल रखना है या नहीं रखना है। ब्रसेल में नेटो के वज़राए दफ़ा के इजलास के मौके पर उन्होंने ये कहा है कि ये एक जायज़ा इजलास है जिसमें कुछ ममालिक के नाम होंगे जबकि दूसरे ममालिक नुमाया तौर पर कामयाब होंगे। उन्होंने कुछ इत्तेहादियों पर मुफ्त में फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम भी लगाया है। अमेरिका जैसे कि आपको पता है ना कि बहुत से इंटरनेशनल MOU से एग्रीमेंट से बाहर निकल रहा है, वहीं नेटो भी अमेरिका के लिए आहिस्ता आहिस्ता एक सर दर्द बनती हुई हमें नज़र आ रही है। हेक्सेट ने कहा है कि नेटो 3.0 का नाम देते हुए इस मुआहदे के हवाले से उन्होंने कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा है कि हम तय करेंगे कि हमने अपनी फ़ौज को कितने अरसे तक यूरोप में रखना है। उधर ईरान से ही हमारे पास एक और ख़बर मौजूद है। ईरान के जो रहबर आला है मुश्तबा अली ख़ामेनेई, उन्होंने अमेरिका के साथ बराह रास्त बातचीत करने की इजाज़त दे दी है। ये ख़बर हमारे पास मुख्तलिफ़ ज़राए से आ रही है। इसके अलावा आज हमने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के ऊपर मुश्तबा अली ख़ामेनेई का सोशल मीडिया हैंडल भी देखा है। वी कांट इट कि ये उन्हीं का है क्योंकि अभी तक वो ब्लू टिक या ग्रे टिक या गोल्डन टिक मार्क नहीं था जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि शायद ये किसी रफ अकाउंट से बनाया गया है। ताहम इस X के बयान में जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुई है इसके ऊपर बातचीत की गई है। अगले 60 दिनों के दौरान ईरान की क्या स्ट्रैटेजी होगी ये सब कुछ बताया गया है। और अपने पैगाम के मतन में रहबर आला ने इस मफाहमती यादाश्त की मंजूरी भी दी है जो कि ईरान और अमेरिका के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ साइन हुए थे। और उन्होंने कहा है कि आइंदा होने वाले बराह रास्त मुज़ाकरात में दुश्मन के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं करना होगा। ये तमाम इंफॉर्मेशन हमारे पास गुज़िश्ता 24 घंटों की अपडेट्स के हवाले से हमारे सामने हैं। तो हम जाते जाते आपको बताते चलें कि आज के दिन जिस वक्त आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं रात 12 बजे के करीब पाकिस्तान में तेल की कीमतों में नुमायां कमी की गई है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़ुद ये इंफॉर्मेशन लोगों को दी और जो लोग बहुत अरसे से महंगाई की चिक्की में पिस रहे थे उनके हवाले से ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है जो हमारे सामने आई है। इसी के साथ हमारे पाकिस्तान से आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी।